Hello everyone. So what I'm thinking is in parallel with previous year topic discussion series, I'll take this Puri Tarah Rato series because what I believe is कि नीट पीजी एग्जाम की प्रिपरेशन में योर 50% मार्क्स जो होंगे वो आप स्कोर करोगे विद योर कंसेप्ट बिल्डिंग वाइल 50% मार्क्स आप रटने से ही ला सकते हो। तो किसी का कंसेप्ट कितने भी क्लियर हो, उसने अगर रटा नहीं ना अच्छे से तो वो अच्छी रैंक नहीं ला पाएगा। सिमिलरली अगर आपने रट लिया और कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब आप अच्छी रैंक नहीं ला पाओगे। बट रटना इज इजी ना। कंसेप्ट तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम बिल्ड होते हैं, बट रटना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम क्या करेंगे कि अप टू द कोर्स ऑफ 70 डेज हम रोज एक टेबल रटेंगे साथ में 3 to 5 मिनट्स के लिए, और वो हर टेबल इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि उस टेबल में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ओके, सो सपोज 70 डेज तक हमने 70 टेबल डिस्कस करी, 50 टेबल्स में से भी क्वेश्चन आ गए तो यू विल गेट 50 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सीरीज। ओके, एंड डेफिनेटली डेफिनेटली होता क्या है कि हम रटने वाली चीज पढ़ भी लेते हैं नोट से ना, तो हम भूल जाते हैं। तो उसको अलग से रटना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अलग से किसी के साथ डिस्कस करना या वीडियो में सुनना is very important. So let us begin. So in this video we'll discuss the autoantibodies that are there in rheumatology and what is the most common antibody in which rheumatological disease. Okay, so rheumatoid arthritis, the antibody that is most sensitive is RF, that is rheumatoid factor antibody, while the most specific is anti-CCP antibody. Clear? For SLE we have most sensitive antibody as ANA, while anti-DSTN and anti-Smith are specific antibody. Out of them, the most specific is anti-Smith. Okay. For drug-induced lupus, we have anti-histone antibody. ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है आज तक. So just keep this in mind. For myositis, polymyositis and dermatomyositis, we have anti-Jovan antibody. ये इतना important नहीं है for you. Scleroderma, anti-SCL70, and Crest syndrome, which is again a type of scleroderma, एंटी सेंट्रोमेयर। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद करने का क्या तरीका, ऑल्दो आई डोंट बिलीव इन निमोनिक्स मच, बट एस फॉर स्क्लेरोडर्मा, एस फॉर SCL70, C for Crest syndrome, C for centromer. Okay, then we have Sjogren syndrome, in which we have anti-Ro and anti antibody जैसे SSA and SSB antibodies भी बोलते हैं, while in mixed connective tissue disorder we have anti-UNRNP antibody. सिमिलरली एक और ऐसा ही टेबल है जिसको हम डिस्कस करते हैं, कॉमन चीजें भी हैं इसमें कुछ और कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, जैसे ANA। तो ANA में पता है कि SLE में तो है ही। ओके, बट ANA इज वेरी नॉन स्पेसिफिक, इट कैन बी सीन इन ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। ओके, एंटी-CCP लास्ट टेबल में डिस्कस किया, RA मोस्ट स्पेसिफिक बॉडी फॉर एंटीबॉडी फॉर RA, RF मोस्ट सेंसिटिव एंटीबॉडी फॉर RA, एंटी-DSTNA SLE, antihistamine drug induced SLE, Jovan for polymyositis and dermatomyositis. Then we have anti-alkane, liver kidney microsomal antibody for autoimmune hepatitis. तो autoimmune hepatitis में ना टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 में भी अलग अलग एल्केम है, बट वो इतना डीप में जाने की जरूरत आई गेस नहीं है अंटिल अनलेस आपका आईएनएसएट का एग्जाम हो। एंटी एएमए इज फॉर प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। इन दोनों एंटीबॉडीज को बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। एंटर सेंट्रोमेयर, क्रैश सिंड्रोम हमने डिस्कस किया अभी, SCL70, डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा, स्मिथ अगेन मोस्ट स्पेसिफिक फॉर SLE, रोला या SSSB फॉर जोग्रन्स, एंटी TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज फॉर ग्रेव्स डिसीज, सी अनका इज फॉर वैगनर्स। दिस इज इंपॉर्टेंट। So we have two type of ANCA antibodies, C ANCA and P ANCA. Out of them, C ANCA is for Wagner's. Wagner's को हम GPA भी बोलते हैं. Okay. P ANCA is for all other vasculitis, small vessel vasculitis like microscopic polyangiitis, like Churg-Strauss, जिसको हम EGPA भी बोलते हैं, as well as P ANCA is seen in ulcerative colitis. Okay. So ANCA antibodies में C ANCA and P ANCA. C ANCA only in Wagner's. P ANCA microscopic polyangiitis, Churg-Strauss or EGPA, and ulcerative colitis. Okay. Juven RNP again very important, mixed connective tissue disorder. Endomysial antibody and anti-TTG are for celiac disease. This is also very important. Then we have anti-GBM antibody for good posture syndrome. Okay. So I can assure you कि इस
टेबल से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। सो जस्ट लर्न दिस टेबल बाय हार्ट। ओके, आप कितना भी नोट्स पढ़ो, उनसे ये चीजें ग्रैस्प करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन चीजों को अलग से रिवाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द बेस्ट गाइस, विल कंटिन्यू दिस सीरीज एंड विल रॉक टुगेदर।